Hello everyone. Today we are taking the mutation. Okay. Mutation is the change in the genetic makeup. Genetic makeup. What is responsible for the genetic makeup? Genes. And genes are located on the arms of chromosomes. And chromosomes are made up of DNA. See, DNA, just suppose this is the fiber of DNA, right? And so many nitrogenous base are present here, right? So if any manipulation or deletion of the nitrogenous base or the anything, any alteration in the genetic makeup, just suppose यहाँ से मैंने T हटा दिया, नॉर्मल जो हमारा जेनेटिक मेकअप था वो ये था, अगर मैंने यहाँ से इसको G को रिमूव कर दिया, ये G रिमूव हो गया ड्यू टू सो मैनी factors. This removal of nitrogenous base cause some specific disease, and that disease is heritable disease, can transfer from one parent to the another. Though mutation is very vast topic, so many factors are responsible for causing the mutation in the genetic makeup, so many physical factors, so many mutagens means the factors which cause the mutation in the genetic makeup. They may be physical, physiological, or chemical, or ultra radiation which cause the manipulation in the genetic makeup. So if only one nitrogenous base delete or deletion of one nitrogenous base from the segment of DNA and any sort of disease cause, for example sickle cell anemia or the cancer, that particular point deletion of nitrogenous base cause the point mutation. बहुत स्लाइड सा चेंज होने से ही क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है. वी विल स्टडी अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन इन द चैप्टर 6, vast study of DNA structure and all that things. ठीक है. So here we are studying about the basic of the mutation. So mutation is the deletion or the manipulation in the genetic makeup or the DNA or the fiber of DNA or in the chromosome. Any manipulation in the genetic makeup cause the disease which can be heritable or which may be heritable. These are known as mutation. Now the question arises, mutation cause so many disorders. One of the disorder is Mendelian disorders. Mendelian disorders. Second one is chromosomal disorder. So Mendelian disorder transfer from parent to their children, from one generation to the another. सिर्फ पेरेंट से चिल्ड्रन पे ही नहीं, वो ग्रैंड पेरेंट से चिल्ड्रन पे और चिल्ड्रन से फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन पे वो ट्रांसफर होंगे. सो दे मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड देन टू द अनदर. एंड क्रोमोसोमल disorders are those disorders, any change in the chromosome makeup or any addition in the chromosome makeup or any extra chromosome when added, then the chromosome disorders takes place. But first of all, the Mendelian disorders takes place due to the so many manipulation in the genetic makeup, and this we can explain with the help of pedigree analysis or pedigree chart. So before starting the Mendelian disorders, how these disorders takes place or what are the criteria, what are the Mendelian disorders. So many Mendelian disorders are there, that is hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, thalassemia. We will study later on, but before starting the disorders we should know the pedigree analysis or pedigree chart by which we can draw the Mendelian disorders. एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डिजीज आ जाएगी और आएगा कि ड्रॉ द पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट. सो हाउ कैन वी ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट? कुछ सिंबल्स हैं उसके, आप देख लीजिए ध्यान से. दिस इज द सर्कल एंड इट डिनोट्स द फीमेल. दिस इज द स्क्वायर and this denotes the male, right? This is
दिस साइन इज अनस्पेसिफाइड सेक्स, ये बहुत कम आएगा आपके, आएगा ही नहीं। और एक आपका बेटा ये दिया होगा, ये क्या है, ये मेटिंग हो रही है, ठीक है, ये मेटिंग हो रही है मेल और फीमेल में, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। अब इनके अगर बेबीज हमें बनाने हैं, जस्ट सपोज यहाँ पे हमने बना दिए बेबीज, 4 बेबीज हैं इनके, ठीक है। 4 बेबीज में मैंने क्या बनाया, 3 तो बॉयज, इट डिनोट्स द बॉय एंड दिस इज गर्ल। जस्ट सपोज किसी बॉय को डिजीज है तो हम इसे क्या कर देते हैं, ऐसे करके कलर कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अगर गर्ल को है तो गर्ल को कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर ले लेते हैं आगे, अगर इस गर्ल की मैरिज हो गई है किसी बॉय से तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है आपको आगे भी, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। इसकी मेटिंग इससे करा दी, फिर इनके बेबीज होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन फिर यहाँ पे शुरू हो गई, हो सकता है इसके 2 ये वाले बेबीज हो। आ गई बात समझ में, हो सकता है इसकी भी शादी हो गई तो इसको ऐसे नेक्स्ट जनरेशन हम उससे क्वेश्चन में जैसे भी दिया होगा हम उसको आगे की तरफ इसको बना सकते हैं। और जिसको भी डिजीज हो रही है आपको बताऊंगी मैं, क्वेश्चन से पूरा समझा दूंगी तब आपको पता चल जाएगा। तो जिसको भी डिजीज हो रही है उसको हम ऐसे शेड कर देते हैं। हो सकता है कि पेरेंट को ही डिजीज हो तो ये, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो होता है ये पेरेंट को ही, किसी एक पेरेंट को क्या है, डिजीज है। और रिसेसिव ट्रेट में पेरेंट को डिजीज नहीं है लेकिन वो करियर है उस डिजीज का, ठीक है, वो पीछे से डिजीज लेकर आ रहा है। मीन्स अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कोई डिजीज थी, वो मेरे पेरेंट्स को नहीं थी, बट उसका जीन जरूर आएगा बेटा। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जीन जरूर आएगा, ठीक है, जीन ट्रांसफर ही होगा, वो चाहे डोमिनेंट हो जाए या फिर रिसेसिव हो जाए। इफ इट इज डोमिनेंट, आपको 10th में भी बताया था मैंने, तो वो डिजीज कॉज हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन में। मेरे पेरेंट्स में वो डिजीज कॉज नहीं हुई, आर्थराइटिस फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, और वो फिर रिसेसिव ट्रेट है उनमें, लेकिन मेरे अंदर वो डिजीज हो गई, मीन्स मेरे अंदर वो आके डोमिनेंट हो गई, ठीक है। हो सकता है मेरे अंकल को किसी को कोई डिजीज हो, मेरे पेरेंट्स को नहीं हो, लेकिन वो मुझे हो सकती है, और हो सकता है कि मेरे कजन्स को ना हो। तो इस तरह से हम पूरा फैमिली चार्ट ड्रॉ करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ये कौन है, ये पेरेंट है, ये कोई अंकल है हमारे, ठीक है, चाचा है 3, तो ये उनके हमारे कजन्स हैं और ये हम हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे ही हम सारा जो है डिजीजेस आगे पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये मैंने आपको पेडिग्री चार्ट, ये हमारे प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। प्रैक्टिकल में हमारे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और हीमोफीलिया है, रोलिंग ऑफ टंग है, ये सारी डिजीजेज हैं, वो हम साथ में करेंगे। प्रैक्टिकल में भी आता है ये, थ्योरी में भी आता है, ठीक है। सो दिस इज द बेस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ different disorders takes place in the Mendelian disorders, right?